شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک سفر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، بزرگ لوکا رسول کا سفر، جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس سارے معاملے کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا. یعنی کہ جو انجیل لکھی گئی، وہ انجیل جو تھی، انہوں نے کس طرح سے اس ساری ترتیب کو اکٹھا کر کے اور وہ بیان کر رہے ہیں. اس کو ہم جو مدر میری کا گیت ہے نا، وہاں تک سیکھیں گے. کہاں تک سیکھیں گے؟ ماں مریم کے گیت تک سیکھیں گے کہ ماں مریم نے جو گیت اپنا پیش کیا ہے، اپنے اس جو ان کو بلیسنگ ملی اور بلیسنگ کے بعد انہوں نے جو گیت کیا، وہاں تک ہم اس کو سیکھیں گے. اور ہم اس کو شروع سے پہلے باب کی پہلی آیت سے سیکھیں گے، اور اس میں جو واقعات ہوئے، جو چیزیں پالوس لوکا رسول نے لکھی، ایکچولی انہوں نے یہ جو چیزیں لکھی ہیں، یہ جو باتیں لکھی ہیں، انہوں نے، وہ ڈاکٹر بھی تھے. آپ کو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر تھے وہ، لیکن وہ میڈیکلی ڈاکٹر تھے، وہ حکیم تھے، اور ان کے پاس لوگ آتے تھے، اور وہ اسکالر بھی تھے. یہ انجیل جو انہوں نے لکھی ہے، یہ ایز اے اسکالر کے طور پر انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے جگہ جگہ سے اس کے لیے مواد اکٹھا کیا، باتیں اکٹھی کی، اور روح القدس کی تحریک سے اس کو قلم بند کیا. یہ ایسے نہیں لکھی گئی، بلکہ اس کے لیے انتھک محنت کی گئی. آسانی سے نہیں ہم تک پہنچی، اور نہ ہی آسانی سے یہ لکھی گئی. اور انہوں نے بھرپور طریقے سے محنت کی، اور انہوں نے 2 بکس لکھی ہیں. لوکا رسول نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 2 کتابیں لکھی ہیں. کون کون سی؟ ایک یہی انجیل جو اس کے نام سے کہلاتی ہے، لوکا کی انجیل، اور دوسرا انہوں نے رسولوں کے اعمال بھی لکھا. رسولوں کے اعمال کی جو کتاب ہے، یہ بھی انہوں نے لکھی. یہ انہوں نے لکھی مسیح کے لیے. کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے لیے. یسوع مسیح کو پیش کیا انہوں نے پراپر طور پر، شروع سے آخر تک انہوں نے مسیح کو جو ہے نا وہ پیش کیا، کہ مسیح کس طرح سے، کیوں آئے، کس لیے آئے، ان کی شہادتیں کیا تھی، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور ان کے صلیب تک کے اوقات کو انہوں نے قلم بند کیا. اور جو انہوں نے رسولوں کے اعمال لکھا، وہ انہوں نے پالوس رسول کے لیے لکھا. پالوس رسول کو پیش کیا انہوں نے. پالوس رسول کی ساری زندگی اور سارے واقعات جو وہ تھے، جو پوری تاریخ تھی، انہوں نے قلم بند کی، اور انہوں نے یہ گورنمنٹ کو لکھی. یہ چونکہ مسیح تو آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے، اور ان کے پیچھے باتیں ہو رہی تھی کہ وہ سچا نبی نہیں تھا. اس کے بارے میں بہت ساری ایسے لوگ باتیں بھی کرتے تھے. کوئی کہتے تھے نہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی کہتے تھے نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا. تو انہوں نے یہ گورنمنٹ کو یہ کتاب لکھی کہ جو آپ اس کے اوپر کبھی کو فتویٰ لگائیں، تو فتویٰ نہیں اس کے اوپر کوئی لگ سکتا، چونکہ وہ شریعت کے مطابق پیدا ہوا، اور شریعت کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی گزارتا رہا، اور شریعت کے مطابق وہ مر گیا، دفن ہوا، اور زندہ ہوا، اور آسمان پر اٹھایا گیا. یہ پوری انجیل لکھنے کا مقصد ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک. یہاں پر جو زوردار باتیں ہیں، وہ تھوڑی سی اس میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ہیں، ان کو ترتیب وار بیان کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت لوگوں نے اس بات پر کمر باندھی ہے، اس بات پر جو انہوں نے کوشش شروع کی ہوئی ہے کہ ہم ان باتوں کو لکھیں. کچھ لوگ تو لکھ رہے تھے، لیکن کچھ لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے سینے کے ذریعے سے، جو ان کے دل میں باتیں تھیں، جو انہوں نے دیکھی تھی، ان کو بیان کر رہے تھے. ان کو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ مسیح جو تھا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا، ہمارے ساتھ ساتھ کھانا کھاتا رہا، ہم نے اس کے ساتھ باتیں کی، ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، ہم اس کے ساتھ گلے ملے. لوگ اپنے اپنے جو مشاہدات تھے، جو ان کی زندگی میں ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے، ایک دوسرے کو، لوگوں کو بتا رہے تھے. تو یہاں پر یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بہتوں نے کمر باندھی، کہ بہت سے لوگوں نے یہ اس بات کو شروع کیا ہوا ہے، اور میں بھی اس کو کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں.
جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے، یعنی کہ خود دیکھنے والے اور کلام کے کیا تھے؟ خادم بھی تھے، ان کو ہم تک پہنچایا، ان باتوں کو کیا کیا؟ ہم تک پہنچایا۔ یہ باتیں لکھنے کے ذریعے بھی ہم تک پہنچی ہیں اور ہارٹ سے بھی، دل سے بھی پہنچی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے دل میں باتیں تھیں وہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی۔ جیسے آج کے اوقات جو آج یہاں پر ہو رہا ہے، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کس نے گیت گایا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کتنے ٹائمنگ میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دیکھنے والے تھے مسیح کے ساتھ، وہ سب بیان کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، خوشخبری پھیل رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ تو یہاں پر جو بزرگ لوکا ہے وہ ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں اور سچی باتوں کو، جو بالکل درست باتیں تھی، ان کو انہوں نے یکجا کرنے کے بعد روح القدس کی تحریک سے اس کو ہمارے لیے، پورے دنیا کے لیے اس کو قلم بند کیا۔ متی نے تو لکھی انجیل یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے، لیکن یہ انجیل جو ہے یہ پورے سب لوگوں کے لیے لکھی گئی۔ اس لیے معزز تھیوفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، کہ میں ساری باتوں کو شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے، معلوم کر کے تیرے لیے کیا کروں؟ لکھوں، تاکہ یہ سب لوگوں تک اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں تک یہ بات جو ہے پیش کی جا سکے کہ یہ صداقت ہے، اس میں کوئی بھی جھول نہیں ہے، یہ بالکل سرل اور سیدھی اور سچی باتیں ہیں، ان میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، کوئی آمیزش نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے تیرے لیے ترتیب دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے میرے عزیزوں بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ ان کی یہ محنت بہت زیادہ ان کی محنت ہے، تاکہ ان باتوں کی تو نے، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے، یعنی کہ ان باتوں کی پختگی، ان کی سچائی جو ہے وہ تمہیں کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے، اس کی طاقت تمہیں پتہ چل جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے یوحنا رسول کا یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا، اس کے باپ کا کیا نام تھا؟ زکریا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کی سٹوری کو پیش کیا کہ وہ ایک کاہن تھا، اور کاہن اپنی باری کے ساتھ جو ہے کہانت کے لیے جاتا تھا، اور باری کے ساتھ ساتھ ان کے لیے قرآن ڈالا جاتا تھا، اور قرآن ڈالنے کے بعد وہ جو تھے ہیکل میں جاتے تھے، اور جب اس کی باری آئی قرے کے ساتھ اور وہ ہیکل میں پاک ترین مقام میں گیا تو اس کو ایک فرشتہ نظر آیا، اور وہ فرشتہ جو تھا وہ صندوق کی دہنی طرف کھڑا ہوا تھا، اور یہ ڈر گیا، اور فرشتے نے اس کو کہا کہ اس طرح سے تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ تو اس نے کہا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو بہت ضعیف ہوں اور میری وائف بھی بہت ضعیف ہے۔ تو اس نے اس بات میں جو ہے انکار کیا، ایمان نہ لایا۔ تو فرشتے نے اس کے ساتھ باتیں تو ساری کی، لیکن جب وہ باہر نکلا تو وہ چپکا ہو گیا۔ فرشتے نے کہا کہ تو چپکا رہے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی، اور اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ نہیں بول سکا۔ لوگوں نے، اس نے دیر لگائی، جب وہ باہر آیا تو وہ اشاروں سے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے انہوں نے یہاں سے اس بات کو شروع کیا۔ اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، اور چونکہ یہ سٹوری تو لمبی ہے، میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے لیے بھی فرشتہ آیا، اور فرشتہ کس کے پاس آیا؟ ماں مریم کے پاس آیا۔ اور جب ماں مریم کے پاس فرشتہ آیا تو اس ماں مریم کو فرشتہ بتا رہا ہے کہ سلام تجھ کو۔ یہ پڑھیں گے ذرا السلام علیکم، دیکھیں تھوڑا سا اس کو۔ اسی میں پہلے باب کی 26 ورس ہے، اس کو ایک دو آیتوں کو پڑھیں ذرا۔ اور چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا
ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کماری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس سے کہا، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ مریم کو فرشتہ کہہ رہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے۔ فضل اس پر بھی ہوا تھا، زکریا پر بھی ہوا تھا، یہاں پر ماں مریم پر بھی فضل ہو رہا ہے۔ اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو، تاکہ جو نسل در نسل لوگ آتے ہیں، بڑوں نے باتیں سنی ہوتی ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، انہوں نے نہیں سنی ہوتی، اس لیے ان حوالوں کو ترتیب وار پڑھنا بے حد ضروری بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ خداوند کی طرف سے اس پر فضل ہوا، اور ماں مریم نے اس فضل کو کیا کیا؟ قبول کیا، منع نہیں کیا۔ حالانکہ یہ عام بات نہیں تھی قبول کرنا، یہ کوئی آسان بات تھی؟ اس دور میں کوئی کماری ماں بن جائے، اور اس دور میں تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا، اس کو پتھروں سے مارا جاتا تھا، شہر سے باہر لے جاتے تھے۔ ماں مریم کو یہ سارا ڈر نہیں لگ رہا ہوگا، اس سارا خوف اس کے سامنے تھا۔ اس کے ماں باپ کی بھی تذلیل ہو سکتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اگر ایسا کچھ کہیں ہو جائے تو ان کے سارے گھرانے کی بے عزتی ہو جاتی ہے، اس لڑکی کی بھی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ سنسار نہیں کرتے تو کم سے کم کچھ تو اس کی ان کی بے عزتی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ تو یہاں پر ماں مریم بھی اسی سچویشن میں ہے۔ یہ آسان نہیں تھا اس بات کو قبول کرنا، پھر ایک نوجوان لڑکی کے لیے، لیکن اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا، خدا کے کلام کو اپنے اندر اپنے دل میں لے لیا، اور اس کی جو آخری باتیں ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ وہ ایمان بھی لائی ہے، کس وجہ سے؟ پھر اس کو ایک شہادت بھی دی گئی ہے کہ جا کر فلاں شخص کو دیکھ، یہ بھی بتایا گیا ہے فلاں عورت کو جا کر دیکھ، وہ تیری رشتہ دار ہے۔ پڑھے بھائی ذرا اس کو، سامن بھائی نکالا ہے حوالہ آپ نے، 13 ایسے پڑھیں۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ کون سے باب کی؟ پہلے باب کی 32 آیت سے پڑھیں، 32 سے۔ ہاں، وہ بزرگ، ہلیلویا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ یہ باتیں اس کو بتائی جا رہی ہیں مریم کو کہ وہ بزرگ ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ جی آگے پڑھیں۔ اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ جی مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کو پوری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، اور وہ جس طرح سے اس کو بتائی جا رہی ہے اسی طرح سے اس کے اندر ایمان بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے، اور سننا خدا کے کلام سے، اور خدا کا کلام فرشتہ لے کر آیا ہے، خدا کا میسج لے کر آیا ہے، اور وہ ایمان میں پختہ ہوتی جا رہی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اور آگے دیکھیں۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ اس کو یہ ساتھ میں اس کو یہ شہادت اور یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ دیکھ تیری جو رشتہ دار ہے، رشبہ ہے، اس کو جا کر دیکھ لے، یہ باتیں تو سن رہی ہے، جو باتیں تیرے ساتھ فرشتہ کر رہا ہے تو اس کو سن بھی رہی ہے، لیکن تو اس کی شہادت بھی لے لے، اپنے رشتہ دار کے پاس، رشبہ کے پاس جا کر دیکھ لے کہ اس کو 5 مہینے ہو گئے ہیں،
वही बात जो पहले उन्होंने लिखी, डॉक्टर साहब ने लिखी कि यूहन्ना के बाप से जब बात की ज़करिया से, वही बात उसको बता रहा है फरिश्ता कि देख जाकर तेरी जो रिश्तेदार है एलिशबा है, जो भांज है, उसके पास जा, जरा देख तो सही। जी पढ़े आगे जरा। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। क्योंकि जो बातें खुदा की तरफ से हैं, जो कौल खुदा की तरफ से है, वो कभी भी बेतासीर ना होगा, वो तासीर रखेगा और वैसा ही होगा जैसा बता रहा हूँ मैं। पढ़े आगे। मरियम ने कहा, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। और फरिश्ता उसके पास से चला गया और उसने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और उसने उसी वक्त अपना सामान समेटा है, उसी वक्त उसने अपना जो है बैग पैक बनाया है। बैग सेट करने के बाद फौरन वो अपनी रिश्तेदार एलिशबा के घर चली गई है, जो पहाड़ी इलाके में रहती है। और जैसे ही उसके घर में गई है, उसने दरवाजा नॉक किया है, और दरवाजा नॉक करते ही जैसे उसकी आवाज एलिशबा के कान में पहुंची है, तो जो उसके पेट में था बेटा, वो उछला है और वो फौरन रूह कुद्दस से भर गई है। एलिशबा फौरन रूह कुद्दस में आ गई है और उसको ये बता दिया गया है कि ये जो बाहर आई है तेरी रिश्तेदार, इसके पेट में जो है वो खुदा है, वो मौलूद मुकद्दस है, उसको सजदा किया है यूहन्ना ने। यही वो गवाही दे रही है। वो कह रही है कि जब से ही तेरी आवाज मेरे कान में पहुंची, तो बच्चा खुशी के मारे मेरे पेट में क्या हुआ, उछला, और उसने उसको सजदा किया, यीशु मसीह को। उसको ये बात की गवाही मिल गई कि जो फरिश्ता मेरे साथ बात कर रहा था, उसने एलिशबा को भी बरकत दी हुई है, एलिशबा को भी उसने जो है मसा किया हुआ है। ये बात बिल्कुल सदाकत और सच्चाई की है। तो मेरे से बड़े इसको भी पढ़ लेते हैं, बड़ा ये जरूरी है इसको पढ़ना। उन ही दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और एलिशबा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में से मुबारक है। कि तू औरतों में से क्या है, मुबारक है। आज हम भी यही कहते हैं कि माँ मरियम क्या है, मुबारक है। जी पढ़े आगे। तेरे रहम का फल मुबारक है, और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। उसको ये बात साबित हो गई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आ गई है, यानी कि मसीह की, खुदा की माँ, यीशु मसीह की माँ उसके पास आ गया। रूह कुद्दस ने उसको ये गाइड कर दिया, उसको ये बता दिया है कि ये इस तरह से है, और वो ईमान ला चुकी है उस पर। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ, तो वो मसीह पर क्या ला चुकी है, ईमान ला चुकी है। पढ़े आगे। क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होगी। हालेलुया। मेरे से वो उसी वक्त क्या लाई, ईमान लाई, खुदा की बेटी बन गई। उसने खुदा यीशु मसीह को मान लिया कि जो पैदा होने वाला है वो मेरा खुदावंद है। तो हम जब अपने इस माँ मरियम के इस गीत की तरफ आते हैं जो अभी शुरू होने वाला है, ये मैं चाहता हूँ, मेरे दिल में ये बात है कि हम इसको सीखें। इस गीत को हम क्या करें, सीखना चाहिए। किसी ने कभी कोशिश की है इस गीत को जब भी हम पढ़ने को है सीखने की, याद करने की? किसी बहन ने, किसी भाई ने? जी आपने कोशिश की है। एक बहन बता रही है मैंने कोशिश की है। शायद आपको आता भी होगा। फिर अगर आता है तो फिर आप भी पढ़ें। सुने जरा, डैड खड़ी होकर पढ़े, तारीफो खुदा की। पहले आगे आ जाए, माइक दे देगा आपको। ठीक है। मेरी रूह खुदावन की बड़ाई करती है,
जिन के पास बाइबल है वो देख लें, खोल लें जी। फिर मरियम ने कहा कि मेरी रूह खुदावन की मेरी रूह खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी जान खुदावन से खुश है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बंदी के पस्त हालत पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। हालेलुया। बैठिए। ये इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, उन्होंने को याद है, लेकिन इस वक्त वो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए। मैंने एक दफा पहले शायद से थोड़ा सा ये इस बारे में डिस्कस हो चुकी है जी। आप पढ़े। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मेरे सिसो, जब हम खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं, खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं, और जब हम पस्तहाली में होते हैं, जब हम टेंशनों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम दुखों में घिरे हुए होते हैं, तो जब खुदावंद हमारी दुआ को सुन लेते हैं, वो हमारे दिल की दुआ को सुन लेते हैं, वो हमारी उस मुश्किल में परेशानी में हमारे साथ होते हैं, तो हम जब उस पर ईमान ले आते हैं, उसकी बातों पर, उसके कलाम पर, तो माँ मरियम कह रही है कि इस बात को लोग नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आज अगर हम ईमानदार होते हुए भी कोई अच्छा काम या कोई खुदा के कलाम पर हम ईमान ले आएंगे, हम खुदा के कलाम के लिए काम करेंगे, हम उसको फैलाने के लिए वर्किंग करेंगे, तो हमें भी लोग नहीं भूलेंगे, हमारी बातों को भी लोग याद रखेंगे। हम भी जो खुदा के लिए खुदा के खेत में खालस तरीके से पुख्ता तौर पर दिनाई के साथ, अक्लमंदी के साथ, ध्यानदारी के साथ, पूरे ईमान के साथ जब काम करेंगे, तो आपको भी लोग नहीं भूलेंगे, आपको भी लोग याद रखेंगे। अभी भी भाई अर्नस्टमल के गीत गाते हैं, अर्नस्टमल को लोग नहीं भूलेंगे, लॉन्ग टाइम नहीं भूलेंगे। हो सकता है जब तक क़यामत है जब तक ना भूलें उसको। तो जब यहाँ पर खुदा की बंदी ये बात कर रही है कि तूने मेरी पस्तहाली पर नजर की, तो यहाँ पर सब पस्तहाल हैं, सब जो है वो घिरे हुए हैं, सबको जरूरतें हैं, सबकी जरूरतें पूरी करने वाला एक ही है, वो मुनज्जी दो आलम है, खुदावंद यीशु मसीह है। यहाँ पर माँ मरियम तो अपने लिए ये गीत पेश कर रही है कि तूने मेरी पस्तहाली पर क्या की, नजर की। तो जितने भी पस्तहाल होते हैं, जब खुदा उस पर नजर करता है और वो उस पर ईमान ले आते हैं, जब हम खुदावंद के अल्फाजों पर, उसकी बातों पर ईमान ले आते हैं और उनको एज इट इज वैसा ही लेते हैं जैसे माँ मरियम ने लिया, रिश्ते की बात को सुना और उसको रद्द नहीं किया। आज का कोई ऐसा शख्स होता तो वो डर जाते, या कोई और उसकी जगह होता तो वो डर जाता कि नहीं, मेरी तो बेइज्जती होगी, मुझे तो लोग घर से निकाल देंगे, मैं तो चर्च में बैठी होंगी, तो मैं तो खुदा का काम कर रही होंगी, तो मेरे तो घर वाले मेरी बेइज्जती करेंगे कि तू कहाँ थी, तू क्या कर रही थी, या तू क्या कर रहा था, कहाँ गया था तू। तो मेरे सिसो, यहाँ पर ये बंदी जो है खुदा को अपना आप इसने पेश कर दिया, अपना बदन पेश कर दिया कि जैसे तेरी मर्जी है वैसा ही हो। हम अपना बदन पेश नहीं करते, अपनी रूह को पेश नहीं करते खुदा के लिए, आधा अधूरा पेश करते हैं। जब आधा अधूरा पेश करते हैं तो आधी अधूरी बरकत भी हमें मिलती है, पूरी बरकत नहीं मिलती, और हम पूरी बरकत नहीं ले पाते। जी पढ़े जरा इसको। क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। क्योंकि उस कादिर ने क्या किया है, मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अगर माँ मरियम के लिए बड़े बड़े काम हुए हैं, तो आपके लिए बड़े बड़े काम नहीं हुए। आपके अंदर भी बहुत सारी दुआएं हैं, आपके पास भी बहुत सारी बातें मौजूद हैं कि खुदा ने आपके लिए बहुत सारे काम किए हैं।
जब से आपने होश संभाली है, आपको कोई सुनने वाला हो तो आप उसको अपने मौजज़ात सुनाएंगे तो आपके मौजज़ात जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो सुनने वाला थक जाएगा। इतने काम खुदा ने आपके साथ किए हुए हैं, बड़े बड़े काम भी किए हुए हैं, छोटे छोटे काम भी किए हैं। सब तरह से खुदावंद आपके साथ था, साथ है, साथ रहेगा। तो क्या इन सारी बातों के बावजूद हम खुदा के साथ रहते हैं? पढ़े जरा इसको। और उसका रहम उन पर जो इसी आयत को क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, हमें उसके नाम को हर वक्त पाक और मुबारक कहना है, जो कि खुदावंद ही वो हस्ती, वो पावर, वो ताकत है जिसने हमारे लिए अपने बेटे को, खुदावंद यीशु मसीह को भेज दिया कि हम जो हैं निजात पाएं दुखों से, तकलीफों से। आज खुदावंद यीशु मसीह अगर हमारे पास इन दिनों में इस तारीख पर बच्चे की सूरत में आए थे तो वो हमारे साथ रहे। 33 years वो हमारे साथ रहे, 33 साल उन्होंने हमारे साथ रहकर, इंसानों के साथ उन्होंने रहकर जिंदगी गुजारी और उन्होंने कहा कि मुझ में कोई गुनाह साबित करके बताए। जी पढ़े, इसी को आगे पढ़े। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। हालेलुया। ये इस गीत के अंदर दरमियान में ये एक आयत है, 50 आयत है और इस बात में बहुत ज्यादा ताकत और पावर है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है, पुष्ट दर पुष्ट। हम सब सोचते तो हैं कि हमारी पुश्तें जो हैं ये बरकत पाएं, ये ब्लेस हों। हम इनको सिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम चाहते हैं कि आगे इनके बच्चे भी जो हैं वो भी मुबारक हों, लेकिन उसके लिए उसका डर और उसका खौफ आज हमारे अंदर होना चाहिए। ये खुदा की बंदी खुदा के उस कलाम से डर गई, इसने उसको कबूल कर लिया, अपने अंदर ले लिया। दुनिया से नहीं डरी है कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इंसल्ट होगी, मुझे पत्थर मारेंगे, मुझे संसार कर देंगे। ये सारी बातें उसने पीछे फेंक दी। मुझे मेरा मंगेतर छोड़ देगा। हालांकि छोड़ने का इरादा तो उसने कर ही लिया था ना, लेकिन वो तो पाक खुदा के फरिश्ते ने आकर उसको ख्वाब में कहा कि नहीं, उसको छोड़ना नहीं, वो मौलूद मुकद्दस है, वो खुदा की तरफ से है जो उसके रहम में है। तो उसको अपने हाथ ले आ, उसको ले आए, लेकिन उसने छोड़ने का इरादा कर लिया था। तो वो इन सारी बातों से डरी तो होगी थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उसने इन सारी बातों का डर खत्म करके खुदा के खौफ को कबूल किया। आज हम दुनिया से डर जाते हैं, लोगों से डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम अपनी सारी जिंदगी में जो जो हम काम करते हैं, शादी ब्याह दीगर मामला जो भी हम करते हैं, उनमें हम लोगों का ही डर लेकर बैठे होते हैं कि लोग की आखणगे। खुदा जो है वो नहीं देखना। यहाँ पर इसने खुदा के खौफ की बात की है कि जब खुदा का खौफ हमारे अंदर होगा तो हमारी पुश्तें भी जो है क्या होंगी, ब्लेस होंगी, बरकत पाएंगी। लेकिन हम सिर्फ अपने ही पुश्त को बरकत दे पाते हैं मुश्किल से, आगे पुश्तों को तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर यही बात कर रही है ये। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदा से डर जाए, खुदा के खौफ को मान लें, खुदा के कलाम को मान लें, तो हमारी पुश्तें भी मुबारक हो जाएंगी। हर कोई चाहता तो है कि मेरी पुश्तें मुबारक हों, लेकिन हो नहीं पाती, चूंकि हम पूरे तौर पर इन बातों को नहीं लेते। बहुत सारी बातों में हम लोगों से डर जाते हैं। हम दुनियादारी के काम कर लेते हैं, हम दुनियादारी के काम कर लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे। लोगों का डर हमें सताता है। खुदा का डर मेरे अज़ीज़ों अगर हम मान लेंगे तो यकीनन ब्लेसिंग हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारी पुश्तों के साथ जुड़ी हुई है, हमारी नस्लों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए खुदा की ब्लेसिंग को इस तरह से लेना है। ये जो गीत है ये निचोड़ है इस बात का, उसने पूरे तौर पर लिखी। वो खुदा से डर गई और उसका खौफ उसने मान लिया। जी पढ़े आगे।
उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने ताई बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। उसने उन लोगों को जो अपने ताई बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया और उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और पस्तहालों को वो बरकत देता है। अगर हम समझते हैं कि हम पस्तहाल हैं तो ब्लेसिंग हमारे ही लिए है, आज हमारे ही लिए है ये ब्लेसिंग। जी आगे बढ़े। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने इख्तियार वालों को क्या किया? तख्त से गिरा दिया और आगे और पस्तहालों को बुलंद किया। आप देखो उस बादशाह को डर था, वो तख्त से गिरा दिया गया था। यूहन्ना ने उसको बार बार उसको जाकर यूहन्ना उसको बोलता था कि तू गुनहगार है, तूने अपनी भाई की बीवी को रखा हुआ है। वो जहां भी उसको मिलता है यूहन्ना उसको हमेशा उसको यही कहता, क्योंकि वो तख्त पर बैठा था। खुदा ने तख्त वालों को क्या कर दिया? गिरा दिया और आम ईमान वालों को, पस्तहालों को उसने क्या किया? बुलंद किया। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम भी बुलंद होना चाहते हैं तो हमें भी खुदा का खौफ लेने की जरूरत है। जी, उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने भूखों को क्या किया? सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। एक शख्स दौलत लेकर आया ना मसीह के पास, शागिर्दों के पास भी आया कि हम तुझे इतने पैसे, तुम लोगों को इतने पैसे देते हैं कि तुम वो जो बरकत जो जिससे तुम बुजुर्ग निकालते हो हमें भी दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मसीह पर ईमान लाने से हो सकता है, दौलत से नहीं हो सकता। हम दौलत से नहीं खरीद सकते, ईमान दौलत से नहीं खरीदा जाता, ईमान लाना पड़ता है मसीह पर। तो इसलिए दौलतमंदों को वो पीछे कर देता है। बतालत से कमाई हुई दौलत देखा है बाइबल मुकद्दस में कि वो पर लगा के उड़ जाती है। ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि खुदा अपने लोगों को दौलतमंद नहीं बनाता। अगर नहीं बनाता तो फिर सुलेमान को इतनी दौलत क्यों दे दी, दाऊद को इतनी दौलत क्यों दे दी, बादशाहों को इतनी दौलत क्यों दे दी? हर जगह पर खुदा ने दी, लेकिन वो जब वो देता है तो फिर उसमें दुख नहीं मिलाता, वो फिर उसको बुलंद करता है, बरकत देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें गरीब और यतीम नहीं देखना चाहता, बल्कि हमें देता है, डबल ट्रबल देता है। अगर हम उसका खौफ माने तो हमारी नस्लें भी जो हैं वो भी ब्लेस्ड रहेंगी। जी, उसने अपने खादिम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। उसने इस्राएल को संभाल लिया। इस्राएल जो थी उस वक्त क्या हो चुकी थी? बिल्कुल जो है एंड पर थी। वो इंतजार कर रहे थे, मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि कोई मसीहा आएगा। तो ऐन वक्त पर मसीह जो थे वो पैदा हुए। आज हम उसी को तो मना रहे हैं, उसी बड़े दिन को तो मना रहे हैं। बड़ा दिन क्यों कहते हैं हम इसको? ये जो हम मना रहे हैं आज का जो दिन है, जो 25 दिसंबर का दिन है, इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं? बड़ी शख्सियत इस दिन आई और पैदा हुई, क्योंकि बड़ा जो सबसे बड़ा है उसकी वजह से ये बड़ा दिन है। किसकी वजह से? मसीह सबसे बड़ा, और उसकी वजह से ये दिन बड़ा है। दिन शायद घंटों में मिनटों में छोटा होगा सबसे, लेकिन ये मसीह के साथ जुड़ने की वजह से बड़ा दिन हो गया। बड़े दिन का यही मतलब है कि मसीह बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बड़ा दिन हम कहते हैं। जी, पढ़ें आगे। जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था, और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। उसने इब्राहिम से, इसहाक से, सारे नबियों से वादे किए हुए थे खुदा ने कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो सारी बातें एज इट इज हुई। और मरियम 3 महीने तक अलिशबा के पास रही और उसके साथ उन्होंने पूरे 3 महीने गुजारे। काफी बातें उन्होंने की होंगी। एक दिन में औरतें इतनी बातें कर रही थी तो 3 महीनों में कितनी की होंगी? तो उन्होंने आपस में बातें करके एक दूसरे के सारे, एक दूसरे को उन्होंने तरक्की दी, एक दूसरे की उन्होंने सलाह की, एक दूसरे को उन्होंने अप्रिशिएट किया, एक दूसरे को उन्होंने ताकत दी, बातें कही, उन्होंने कलाम की बातें की, खुदा की बातें की कि खुदा ने मुझ पर भी रहम किया है और तुझ पर भी रहम किया है। वो जो भांज थी उस पर भी रहम हुआ और उसको यूहन्ना दिया गया। जो यूहन्ना किस लिए दिया गया? कि आने वाले की क्या करे? राह तैयार करे।
वो मसीही राह तैयार करने के लिए भेजा गया था। इन दोनों को एक साथ ही आना था। ये पूरा प्री प्लान ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर लूका ने जो ये इंजील लिखी है, ये बड़ी तरतीब से ये लिखी गई है। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने निचोड़ निकाल दिया है इसको लिखने के लिए। बाकी जो इंजीलें हैं वो उनका एक अपना स्टाइल है लिखने का, लेकिन इन्होंने जो लिखी है इसी के ऊपर, आप जीसस मूवी जो देखते हैं ना, जो सबसे पहले बनी है, वो इसी के ऊपर तरतीब से वो बनी है। और इसमें सारी चीजें उन्होंने ऐसे ऐसे तरतीब से सेट की हैं, और सारी बातों को उन्होंने कोशिश की है कि लेकर जो इसमें क्या किया जाए, रखा जाए। तो इस इंजील को मेरे अज़ीज़ों आप कोशिश करें कि इसको पढ़ सकें। और ये गीत जो माँ मरियम का गीत है, इसको हमें, मैं समझता हूँ कि हमें बहनों को हमें याद करने की जरूरत है। हमें इसको याद कर लेने की जरूरत है, हिफ्ज कर लेने की जरूरत है। हमें ज़बानी आना चाहिए। जब कलाम अंदर होगा, कलाम कौन है? मसीह है ना। तो मसीह अंदर होगा तो सारे काम होंगे। तो ये मसीह की मां ने ये गीत जो है अपनी जिंदगी में पेश किया, और ये डॉक्टर लूका ने बाकायदा तौर पर इसको तहरीर किया है, इसको छोड़ नहीं दिया। और ये इंजील में रखा गया है। कब वो माँ मरियम के पास गए होंगे, कब उन्होंने उनसे वो शायरी ली होगी कि ये गीत जो था, जो तुझे खुदा ने दिया है, मुझे दे, मैं लिखूं। कितनी मेहनत की होगी, कहाँ कहाँ वो गए होंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये गीत जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको, और इसके अंदर जो मैसेज है, इसके अंदर जो कलाम है, वो बाबरकत कलाम है। अगर हम डर और खौफ खुदा का अपने अंदर रखेंगे तो यकीनन हमारी पुश्तें भी बरकत पाएंगी, हमारी नस्लें भी बरकत पाएंगी। तो आज इस बड़े दिन के मौके पर खुदा ने हमें ये बात सिखाने की कोशिश की है कि हम जो है खुदा का खौफ अपने अंदर पैदा करें। उन लोगों के अंदर अभी बेटा बता रहा था, बात कर रहा था कि उन लोगों के अंदर खौफ ही नहीं है, जो सारी रात जागते रहे, सारी रात उन्होंने उछल कूद की। अभी मैं सुबह घर से निकल रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं घर से निकल रहा था, तो दो मुंडे डिगन डे से एक दूसरे का खुल गई है दुकान। अच्छा, नहीं अरे नहीं खुली, नहीं खुल गई है। तो मतलब इस तरह की ये हालत चल रही है, हमारी नौजवान नस्ल की ये हालत चल रही है। वो मैं क्या खुले तो बंद भले तुम गिरजे वाले पास जाओ, दुकाना सारियां बंद हो गई हैं, क्योंकि दुकानें बंद हो जाती है इस नगरी में। सब दुकानें, क्रिश्चियनों की सब दुकानें बंद हो जाती है। जितनी भी दुकानें हैं सब एरिया में अंदर सब जो है सिक्योरिटी लग जाती है। सारे नौजवान खड़े हो जाते हैं, सिक्योरिटी के लिबास पहना हुआ था उन्होंने। तो 12-1 बजे तक सब चीजें बंद रहती हैं। तो ये कहने का मतलब है कि हमें भी जो है इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की जरूरत है। तो खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, और हम जो है इन गीतों को भी सीख सकें, और खुदा के कलाम को भी अपने अंदर रख सकें। खुदा आपके साथ हो, आमीन। खुदा के कलाम के लिए तालियां बजा सकते हैं।